At 2:10 p.m. on the 5th of December 1945, 5 U.S. Navy training planes took off in clear weather from Fort Lauderdale, Florida. The planes flew east over the coast and disappeared. The group was Flight 19 on a run between Florida and the Bahamas. Lieutenant C.C. Taylor was the group leader. 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 बजे 5 अमेरिकी नौसेना प्रशिक्षण विमान स्पष्ट मौसम में फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरते हैं। ये विमान तट के ऊपर पूर्व की ओर उड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। यह समूह फ्लाइट 19 था जो फ्लोरिडा और बहामस के बीच उड़ान भर रहा था। लेफ्टिनेंट C.C. टेलर इस समूह के नेता थे। At about 3:40, Taylor reported that his compasses were not reading properly. The other pilots followed their leader aimlessly, first east, then west, then northeast over the ocean, as Taylor tried to get his bearing by radio. Then suddenly, Taylor was heard to give orders to ditch. करीब 3:40 बजे टेलर ने रिपोर्ट किया कि उनके कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बाकी पायलट अपने नेता का अनुसरण करते हुए बिना किसी दिशा के पहले पूर्व की ओर, फिर पश्चिम की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर समुद्र के ऊपर उड़ते गए, जबकि टेलर रेडियो के माध्यम से अपनी दिशा जानने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक टेलर को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें विमान को जल में उतारने का आदेश देना पड़ा। Quickly, 2 giant Martin seaplanes were sent up to search for Flight 19. Several hours later, the wind became strong and visibility dropped. A return to base was ordered. Only one of the Martin seaplanes landed. For days after, the Navy and Coast Guard combed a 1 lakh square mile, 258,998.8 square kilometers, area with more than 100 planes and ships. No trace was ever found to the missing planes. जल्दी ही फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए 2 विशाल मार्टिन सीप्लेन भेजे गए। कुछ घंटे बाद हवा तेज हो गई और दृश्यता कम हो गई। वापस लौटने का आदेश दिया गया। केवल एक मार्टिन सीप्लेन ने लैंड किया। इसके बाद कई दिनों तक नौसेना और कोस्ट गार्ड ने 1 लाख वर्ग मील 258,998.8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 100 से अधिक विमान और जहाजों के साथ खोजबीन की। गायब विमानों का कोई सुराग नहीं मिला। Today, more than 30 years later, Flight 19 is at the center of a mystery that has given chills to people the world over. Magazines, books, newspapers, radio talk of the disappearance of many ships and planes in the southeastern part of the North Atlantic. People have begun calling this area as the Bermuda Triangle. आज 30 से अधिक सालों बाद फ्लाइट 19 एक रहस्य का केंद्र बन गया है जिसने दुनिया भर के लोगों को दहशत में डाल दिया है। पत्रिकाओं, किताबों, समाचार पत्रों, रेडियो में उत्तर अटलांटिक के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कई जहाजों और विमानों के गायब होने के बारे में बातें की जाती हैं। लोग इस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल कहने लगे हैं। The points of the triangle are Bermuda, Puerto Rico and a spot in the Gulf of Mexico, west of Florida. It is a two-faced water world of tiny islands, bright beaches and beautiful waters, yet thick hazes, powerful currents and sudden storms lurk behind the smiling surface. And one can never know, it seems, when the smile may turn into a snarl. बरमूडा ट्रायंगल के बिंदु बरमूडा, प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा के पश्चिम में मेक्सिको की खाड़ी का एक स्थान है। यह छोटे द्वीपों, चमकती हुई समुद्र और सुंदर जलों का एक दोहरी चेहरा वाला जल क्षेत्र है। फिर भी इसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे घना कुहासा, शक्तिशाली धाराएं और अचानक तूफान छिपे हुए हैं। और यह कभी नहीं जान सकते, ऐसा लगता है कि मुस्कान कब एक गुस्से में बदल जाए। Of the 40 ships and 20 planes said to have been lost here during the last 100 years, 21 have met misfortune in December and January. That is when the Christmas winds blow across the triangle. पिछले 100 वर्षों में यहाँ खोई गई 40 जहाजों और 20 विमानों में से 21 दिसंबर और जनवरी में बुरी किस्मत का शिकार हुए हैं। यही वह समय है जब क्रिसमस हवाएं बरमूडा त्रिकोण के पार बहती हैं। On the 5th of December 1946, exactly 1 year after Flight 19 disappeared, a pleasure ship, the City Belle, was found south of the Bahamas, deserted by its crew. 5 दिसंबर 1946 को जब फ्लाइट 19 गायब हुई थी, ठीक एक साल बाद एक सुखद यात्री जहाज सिटी बेल बहामस के दक्षिण में पाया गया, जिसका चालक दल गायब था। It was in January of 1958 that the triangle is said to have swallowed up the yacht Revenant with its owner and crew. They were going from Key West to Miami. The only traces of the Revenant were pieces of a lifeboat and a toilet seat.
जनवरी 1958 में कहा जाता है कि त्रिकोण ने याट रेवेनॉक को उसके मालिक और चालक दल सहित निगल लिया। वे की वेस्ट से मायामी जा रहे थे। रेवेनॉक के केवल जो निशान मिले वे एक लाइफ बोट के टुकड़े और एक टॉयलेट सीट थे। Another puzzling case happened on the 22nd of December 1967. The owner of the 23-foot Beechcraft radioed the Miami Coast Guard for assistance. His boat had a damaged propeller and was drifting near the harbor channel entrance. He reported that he could surely see Miami from the boat. Within 10 minutes, the Coast Guard was on the spot. No sign of the boat was found then or since. एक और रहस्यमय मामला 22 दिसंबर 1967 को हुआ। 23 फीट की बीचक्राफ्ट के मालिक ने मायामी कोस्ट गार्ड से मदद के लिए संपर्क किया। उसकी नाव का प्रोपेलर खराब था और वह बंदरगाह चैनल के प्रवेश द्वार के पास बह रही थी। उसने रिपोर्ट किया कि वह निश्चित रूप से नाव से मायामी देख सकता था। 10 मिनट के भीतर कोस्ट गार्ड उस स्थान पर पहुंच गया। फिर या उसके बाद नाव का कोई पता नहीं चला। Planes have completely vanished in the air above the triangle. In the summer of 1947, a U.S. Air Force Superfortress disappeared 100 miles (160.93 kilometers) from the Bermuda coast. On the 30th of January 1948, a British plane with 31 passengers aboard vanished after radioing Bermuda that all was well. In December 1948, the pilot of a DC-3 bound from San Juan to Miami reported the lights of Miami in sight. The passengers were singing Christmas carols. All was calm, all was bright, but the plane was never heard from again. विमान पूरी तरह से त्रिकोण के ऊपर हवा में गायब हो गए हैं। 1947 की गर्मियों में एक यूएस एयरफोर्स सुपरफोर्ट्रेस बरमूडा तट से 100 मील 160.93 किलोमीटर दूर गायब हो गया। 30 जनवरी 1948 को एक ब्रिटिश विमान जिसमें 31 यात्री सवार थे बरमूडा से यह रिपोर्ट करने के बाद गायब हो गया कि सब कुछ ठीक था। दिसंबर 1948 में सैन जुआन से मायामी जा रहे एक DC-3 के पायलट ने मायामी की रोशनी देखी। यात्री क्रिसमस कैरल गा रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ रोशन था, लेकिन उसके बाद विमान का कभी कोई पता नहीं चला। What happened to these ships and planes? Some people say that spaceships swooped down and wobbled up the ships and planes. Some believe the triangle surrounds a giant tunnel leading to the center of the earth. इन जहाजों और विमानों के साथ क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष यान ने आकर जहाजों और विमानों को निगल लिया। कुछ मानते हैं कि त्रिकोण के अंदर एक विशाल सुरंग है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है। Others believe the mysteries can be explained by natural causes. For example, there is a logical explanation for the vanishing crew of the City Belle. Battered by a sudden storm, ship radioed for help. The message was picked up by an American base, and the ship's crew was rescued. अन्य लोग मानते हैं कि इन रहस्यों को प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सिटी बेल के गायब हुए चालक दल का एक तार्किक समाधान है। एक अचानक तूफान से परेशान होकर जहाज ने मदद के लिए रेडियो किया। संदेश एक अमेरिकी बेस द्वारा प्राप्त किया गया और जहाज के चालक दल को बचा लिया गया। The Straits of Florida are among the busiest waterways in the world. In the haze often found here, large ships sometimes run down smaller ones with no more than a light, unnoticed bump. From the bits found from the Revenant, the Coast Guard thinks that is what could have happened to the unlucky boat. फ्लोरिडा के जलडमरोंडू में दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। यहाँ अक्सर पाए जाने वाले कुहासे में बड़े जहाज कभी कभी छोटे जहाजों को हल्की अनदेखी टक्कर से रौंद डालते हैं। रेवेनॉक के जो टुकड़े पाए गए उनसे कोस्ट गार्ड का मानना है कि यही वह चीज हो सकती है जो उस दुर्भाग्यपूर्ण नाव के साथ हुई। The loss of the Beechcraft is another case that can be explained by natural causes. The night was windy. A damaged propeller slowed down the boat. The strong currents, the wind in the snail-like canvas top, and the shower speed probably carried the boat north towards Fort Lauderdale. From the sea, Fort Lauderdale looks like Miami. When Beechcraft radioed that it was off Miami, it was in fact off Fort Lauderdale. The Coast Guard was looking in the wrong place. Eventually, Beechcraft must have been carried out to sea. Beechcraft के गायब होने का मामला भी प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है। रात बहुत बवंडर वाली थी। एक खराब प्रोपेलर ने नाव की गति को धीमा कर दिया।
तेज धाराएं, स्नेल जैसी कैनवास छत में हवा और बारिश की गति शायद नाव को उत्तर की ओर फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल की तरफ ले गईं। समुद्र से फोर्ट लॉडरडेल मायामी जैसा दिखाई देता है। जब विचरक्राफ्ट ने यह रिपोर्ट किया कि वह मायामी के पास है, तो वह वास्तव में फोर्ट लॉडरडेल के पास था। कोस्ट गार्ड गलत जगह तलाश रहा था। अंततः विचरक्राफ्ट को समुद्र की ओर बहा लिया गया होगा। Even long-time pilots can run into trouble in such an unpredictable area. The superfortress that vanished in 1947 must have run into a storm and been destroyed. यहाँ तक कि अनुभवी पायलट भी इस अप्रत्याशित क्षेत्र में मुसीबत में पड़ सकते हैं। 1947 में जो सुपरफोर्ट्रेस गायब हुआ था, वह शायद एक तूफान में फंसकर नष्ट हो गया होगा। Explaining the lost DC-3 and its Christmas singers, a Coast Guard captain says, before takeoff the pilot reported that his radio batteries were weak. Then the wind shifted strongly. Instead of being over South Florida, he was probably over the Gulf of Mexico and mistaking the lights of Key West for Miami. Finally, he ran out of gas and crashed. गायब हुए DC-3 और इसके क्रिसमस गाने वालों का कारण समझाते हुए एक कोस्ट गार्ड कप्तान कहते हैं, उठान से पहले पायलट ने रिपोर्ट किया था कि उसकी रेडियो बैटरियां कमजोर थीं। फिर हवा की दिशा तेजी से बदल गई। दक्षिण फ्लोरिडा के ऊपर होने के बजाय वह शायद मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर था और की वेस्ट की रोशनियों को मायामी समझ लिया। आखिरकार उसका ईंधन खत्म हो गया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। Flight 19 was lost not because of supernatural forces but because Taylor lost his bearings. Had he switched to his clear emergency radio channel, shore stations could have helped him find his position. Finally, panic seems to have taken over the pilots. Flight 19 का नुकसान अदृश्य शक्तियों के कारण नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि टेलर ने अपनी दिशा खो दी थी। अगर उसने अपने स्पष्ट आपातकालीन रेडियो चैनल पर स्विच किया होता, तो तट स्टेशन उसे अपनी स्थिति ढूंढने में मदद कर सकते थे। अंततः ऐसा लगता है कि पायलटों के भीतर घबराहट समा गई थी। As for the lost modern seaplane, a freighter reported a great, fiery bang at 7:50 p.m. in the area where the plane was flying. These seaplanes were known to develop loose fuel lines in rough air and then blow up. This seems to be the answer to this plane's mystery. जहां तक गायब हुए मार्टिन सीप्लेन का सवाल है, एक मालवाहक जहाज ने शाम 7:50 बजे उस क्षेत्र में एक जोरदार आग जैसी आवाज का रिपोर्ट किया था, जहां विमान उड़ रहा था। इन सीप्लेनों के बारे में जाना जाता था कि वे खराब मौसम में ढीले ईंधन लाइनों का सामना करते थे और फिर विस्फोट हो जाते थे। यही इस विमान के रहस्य का उत्तर प्रतीत होता है। Captain Landale of the Coast Guard sums up, an average of 352 major ships a year are lost throughout the world. 4 or 5 of these are hit so suddenly that they have no time to send out an SOS. If a ship is lost in what is known as the Bermuda Triangle, the Coast Guard considers it a disaster. To someone who doesn't know the facts, it seems unbelievable. I guess anything you can't understand yourself is bound to be supernatural. कोस्ट गार्ड के कप्तान लोंडेल सारांश में कहते हैं, दुनिया भर में हर साल औसतन 352 बड़े जहाज खो जाते हैं। इनमें से 4 या 5 इतने अचानक मारे जाते हैं कि उन्हें SOS भेजने का समय नहीं मिलता। अगर कोई जहाज बरमूडा त्रिकोण के रूप में जाना जाने वाले क्षेत्र में खो जाता है, तो कोस्ट गार्ड इसे एक आपदा मानता है। जो कोई तथ्यों को नहीं जानता, उसे यह अविश्वसनीय लगता है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी आप खुद नहीं समझ सकते, वह अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है। वर्ड मीनिंग: डिसअपीयर्ड, वैनिश्ड फ्रॉम साइट, गायब हो गया, दृष्टि से अदृश्य हो जाना। कंपासेस, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर नोइंग डायरेक्शंस, संचलन यंत्र, दिशा जानने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र। पिच, लीव और गेट रिड ऑफ, छोड़ना, छोड़ देना या दूर करना। ट्रेस, मार्क लेफ्ट बाय समथिंग, निशान, कुछ का छोड़ा हुआ मार्क। चिल्स, अ सडन प्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर, कांपना, डर की अचानक और अप्रिय भावना। स्नाल, टू मेक एन एंग्री साउंड, घुंघराना, गुस्से में ध्वनि निकालना। डिजर्टेड, लेफ्ट अलोन, परित्यक्त, अकेला छोड़ दिया गया। क्रू, a group of people who work together on a ship. दल, एक समूह जो एक जहाज पर मिलकर काम करता है। Propeller, a device with blades which is attached to a boat or an aircraft. Propeller, एक यंत्र जिसमें पंख होते हैं, जो नाव या विमान से जुड़ा होता है। Swoop down, to come down upon something in a sudden swift attack. झपटना, अचानक और तीव्र हमले में किसी चीज पर नीचे आना। Haze, a light mist,
धुंध, हल्की कुहासा, पैनिक, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंजाइटी और फियर, घबराहट, चिंता या डर का बहुत तेज एहसास। Like, share, and subscribe.